Hello, people. Good morning. Welcome to Literature Vidya. I am Ankita, and from today, I am beginning a series of lectures on literary theory. And the first lecture in the series is on new criticism. So, let's begin. New criticism. Before beginning new criticism, there is a very important word that is often asked in the UGC NET exam and other examination also, that is semiotics. What is the meaning of semiotics? So if you're asked what is the meaning of semiotics, you should know semiotics का मतलब होता है study of sign, right? Semiotics का क्या मतलब होता है? Study of sign. Okay, now let's officially begin. New criticism focus was on language and formal properties of the text. Okay, तो जो हमारा न्यू क्रिटिसिज्म स्कूल है उसका फोकस जो था वो लैंग्वेज और फॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द टेक्स्ट था. मतलब न्यू क्रिटिक के जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? वो हमें कह रहे हैं कि हमारे लिए ऑथर का बैकग्राउंड, उसके रेशियल फैक्टर्स, उसका जेंडर, उसका थॉट प्रोसेस, उसकी बायोग्राफिकल हिस्ट्री, ये सब कुछ भी मायने नहीं रखती. नथिंग इज इंपॉर्टेंट टू अस. What is important is the text, right? The language that is written in the text and the formal properties of the text. What are the formal properties of the text? जैसे उस टेक्स्ट में कितनी बार एलिगरी यूज किया गया है, द एम्बिग्विटीज यूज्ड इन द टेक्स्ट, द लिटॉट्स यूज्ड इन द टेक्स्ट, द पंक्चुएशन मार्क्स इन द टेक्स्ट, all of these are called the formal properties of the text. So for the new critics, the focus was on the language and formal properties of a text. Okay, new critic was a term taken from John Crow Ransom 1941 essay by the name new criticism, right? तो new criticism जो था, जो नाम था, it was taken by जॉन क्रो रैंसम थे हमारे एक प्रोफेसर जो कीनियन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, राइट? जिसके शिष्य जो थे वो थे रॉबर्ट पेन वॉरेन, राइट? रॉबर्ट पेन वॉरेन जो थे वो उनके प्यूपल थे, जो हम आगे पढ़ेंगे इसी स्कूल में, राइट? इन्होंने 1941 में एक एसे लिखा जिसका नाम था न्यू क्रिटिसिज्म, राइट? एंड फ्रॉम हियर द नेम ऑफ this very school was taken, right? 1941 essay by John Crow Ransom by the name New Criticism. Okay, now the people associated with this school or with this concept of new criticism are Clinic Brooks, Robert Penn Warren, William Wimsatt, Mondre Beardsley, R.P. Blackmore, I.A. Richards, and T.S. Eliot, right? And another person who is associated with this is also Ibsen, right? Who has written the 7 types of ambiguities. Ibsen is also belonging to the same school. Okay, so now moving forward. Here in new criticism, the author's intention behind a work is not important, है ना? हम ये बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि ऑथर का जो इंटेंशन है behind writing any piece of work is not important, right? ऑथर का इंटेंशन बिल्कुल भी important नहीं है. हिस्ट्री ऑफ द टेक्स्ट इज नॉट important या फिर उसकी बायोग्राफिकल हिस्ट्री भी important नहीं है. तो important क्या है? Important है फॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द टेक्स्ट, the language and the style of the text. हम फोकस कर रहे हैं टेक्स्ट के ऊपर, उसकी लैंग्वेज के ऊपर और उसके फॉर्मल प्रॉपर्टीज के ऊपर, उसके स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट के ऊपर. ठीक है? All we need is the words on the page and meaning is contained within the text itself, right? हम what are we focusing on? हमारा फोकस सिर्फ उस टेक्स्ट पे है, उस टेक्स्ट के वर्ड्स पे है, राइट? सो आवर एंटायर
central attention is on the words on the page, right? And the author or the people associated with new criticism say that the meaning is contained within the text itself. You do not need any extrinsic information. सब कुछ टेक्स्ट में ही है, राइट? तो हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी टेक्स्ट है उसकी एक ऑटोनॉमस एग्जिस्टेंस है, एंड हेंस वी कॉल द टेक्स्ट एज द ऑटोटेलिक टेक्स्ट, राइट? तो हम किसी भी टेक्स्ट को क्या बोलते हैं? वी कॉल द टेक्स्ट एज एन ऑटोटेलिक टेक्स्ट. वो कह रहे हैं कि हर एक टेक्स्ट की एक ऑटोनॉमस एग्जिस्टेंस है, और हेंस जो टेक्स्ट है वो एक ऑटोटेलिक टेक्स्ट है. इट कैन स्टैंड विद इन इटसेल्फ. इट डज नॉट नीड एनी आउटसाइड इंफॉर्मेशन. इट डज नॉट नीड एनी ऑथर, है ना? तभी जब इस स्कूल को हम आगे एक्सपैंड करेंगे एंड विल टेक इट टुवर्ड्स पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, है ना, वहां पे एक इंडिविजुअल आएगा बाय द नेम ऑफ रॉबर्ट बार्ट्स, है ना, रोनाल्ड बार्ट्स, बाय द नेम ऑफ रोनाल्ड बार्ट्स. और वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे द डेथ ऑफ द ऑथर इज द बर्थ ऑफ द रीडर, राइट? वो इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे जब ये लाइन बोलेंगे वो, कि when the author is dead, it's then that the reader is born. Okay? ठीक है. Now, तो the same point, author, class, gender, sexual preferences, race, economic condition are all irrelevant. कोई भी चीज जो ऑथर या ऑथर की हिस्ट्री या बायोग्राफी से एसोसिएटेड है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? Anything subjective to the author is of no need in understanding the author's writing. Right? Why? Because the text is an autonomous text. It is a autotelic text. It can stand for itself. Okay? For them, form, style, paradox, ambiguity, image, metaphor, meter, rhyme, sound, ये सब important है. मतलब जो टेक्स्ट के अंदर ही जो फॉर्मल प्रॉपर्टीज हैं उस टेक्स्ट की, जैसे फॉर्म, स्टाइल, एलिगरी, एम्बिग्विटी, मेटाफर, राइम, साउंड, ये सब इंपॉर्टेंट है, और इसी के बेसिस पे ये लोग उस टेक्स्ट का मीनिंग डिराइव करते हैं. ओके? हेंस देयर फोकस, द फोकस ऑफ न्यू क्रिटिक्स इज ऑन पोइट्री, और इसीलिए ही इनका जो मेजर फोकस है वो पोइट्री है. व्हाई? बिकॉज पोइट्री जो है वो ऑर्नामेंटेड होती है इन सब फॉर्मल प्रॉपर्टीज के साथ. उनमें ये सारी फॉर्मल प्रॉपर्टीज कोई भी नॉवेल या कोई भी प्रोज से ज्यादा होती है. इसीलिए ही न्यू क्रिटिक्स का जो फोकस है वो पोइट्री पे है, राइट? पोइट्री हैज द मोस्ट इंटरेस्टिंग यूज ऑफ लैंग्वेज, है ना? उसमें जो फॉर्मल प्रॉपर्टीज होती है उसका ऑर्नामेंटेशन हाईएस्ट होता है. दैट इज व्हाई देयर फोकस इज ऑन पोइट्री. ओके, नाउ लेट्स लुक एट द हिस्ट्री ऑफ द न्यू क्रिटिसिज्म, कि ये मूवमेंट आया कहां से. ठीक है? So it is a formalist movement in the literary theory that flourished in America in the middle of 20th century. Okay, तो ये एक formalist movement है जो अमेरिका में फ्लरिश हुआ है in the middle of 20th century, मतलब अराउंड 1920s के आसपास से ये कहीं शुरू हुआ था till 2000 तक it was going on. Okay, so it began somewhere even early to the 20th century, right? Focus is on the close reading of the text, right? तो ये लोग क्या फोकस करें? क्लोज रीडिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज रीडिंग? क्लोज रीडिंग मतलब उस टेक्स्ट को ही ध्यान से पढ़ो, उसके अंदर की सारी फॉर्मल प्रॉपर्टीज निकालो. मतलब लाइन बाय लाइन यू शुड नो कि इस लाइन में एलिगरी यूज की गई है, इसमें एम्बिग्विटी का इस्तेमाल किया हुआ है. दैट इज व्हाई वी कॉल कि जो हमारे न्यू क्रिटिक्स हैं वो बहुत ही क्लोज रीडिंग करते हैं किसी भी टेक्स्ट की, राइट? फॉर देम द वर्क ऑफ लिटरेचर इज सेल्फ कंटेन्ड, right, and self-referential, and okay, and a aesthetic object. It's aesthetic object. Okay, it's self-contained, it's self-referential, and it's a aesthetic object. Okay, अब एक्चुअली इशू क्या था कि जो ओल्ड लिटरेरी स्कूल्स थे जो यूएस नॉर्थ में फ्लरिश हो रहे थे, राइट,
जो कि हिस्ट्री, बायोग्राफी और ऑथर के जो आउटसाइड सर्कमस्टेंसेस हैं उन सब पे फोकस कर रहे थे, राइट। और ये सब जो स्कूल थे 19th सेंचुरी में फ्लरिश हो रहे थे किसी जर्मन स्कॉलर के इन्फ्लुएंस के अंडर, राइट। तो न्यू क्रिटिक्स का मानना था कि ये जो एंटायर थ्योरी है जिसमें हम कोई ऑथर की बायोग्राफी पे या फिर उसके द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच ही वाज राइटिंग, थॉट प्रोसेस दैट वाज गोइंग ऑन इन हिज माइंड, जब हम ये सब चीजों पे फोकस करते हैं व्हाइल अंडरस्टैंडिंग एनी पीस ऑफ टेक्स्ट, जो कि हम कर रहे थे प्रायर टू व्हेन द स्कूल ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म स्टार्टेड, दे सेड कि हम बेसिकली उस टेक्स्ट की जो ओरिजिनलिटी है उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट। जो उस टेक्स्ट की ओरिजिनलिटी है हम उसको देखना भूल जाते हैं, वी गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टेक्स्ट, राइट। वो क्या कहता है कि हम जो है वी गेट डिस्ट्रैक्ट्स अस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, राइट। और हम उसकी जो एस्थेटिक क्वालिटी है उसको कंप्लीटली निग्लेक्ट करते हैं, राइट, एंड एंटायरली निग्लेक्ट। और हम क्या कर देते हैं, वी एंटायरली निग्लेक्ट द, और हम कंप्लीटली निग्लेक्ट कर देते हैं उसकी एस्थेटिक क्वालिटी को, राइट। वी एंटायरली निग्लेक्ट द एस्थेटिक क्वालिटीज बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हम उसकी एस्थेटिक क्वालिटी को कंप्लीटली निग्लेक्ट कर देते हैं, ओके। So by rejecting the subjective and emotional version of the text, they focused on the objective and systematic method, right? तो अब इनका फोकस किस पे था, सब्जेक्टिव को छोड़ के इनका जो फोकस था वो सब्जेक्टिव और इमोशनल पर ना होकर ऑब्जेक्टिव और सिस्टमैटिक पर था, राइट, ओके। न्यू क्रिटिक्स बिलीव दैट द स्ट्रक्चर एंड मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट आर इंटीमेटली कनेक्टेड एंड शुड नॉट बी एनालाइज सेपरेटली, ओके। कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसका स्ट्रक्चर, जिस वे में वो लिखा गया है, जो सारी फॉर्मल प्रॉपर्टीज उसमें यूज की गई हैं, और उसका मीनिंग, मतलब मीनिंग जो है वो उन्हीं फॉर्मल प्रॉपर्टीज से ही निकल कर आएगा। दे आर बोथ इंटीमेटली कनेक्टेड, है ना, और हम उन्हें अलग अलग एनालाइज नहीं कर सकते। इट इज थ्रू दोज फॉर्मल प्रॉपर्टीज ओनली कि उसका मीनिंग निकल के आएगा, उस टेक्स्ट का मीनिंग निकल के आएगा, ठीक है। सो दे एक्सक्लूडेड, तो उन्होंने ऑथर के इंटेंशन को, उसके हिस्टोरिकल और कल्चरल बैकग्राउंड को और उसके मॉरल बायस को सबको उखाड़ के बाहर फेंक दिया। व्हाई? बिकॉज दे कंसिडर्ड दैट दिस वाज नॉट इंपॉर्टेंट, ओके। एंड दिस वाज क्लियरली प्रेजेंटेड फॉरवर्ड बाय जॉन क्रो रैंसम्स ऐसे न्यू क्रिटिसिज्म, ओके। और एलन टेट ने भी बाद में एक ऐसे लिखा था मिस एमिली एंड बायोग्राफर्स, राइट, उसमें भी उसने यही पॉइंट पुट फॉरवर्ड किया था। एलन टेट ने भी एक ऐसे लिखा था बाय द नेम ऑफ मिस एमिली एंड द बायोग्राफर्स, जहां पे उसने यही कॉन्सेप्ट पुट फॉरवर्ड किया था कि जो टेक्स्ट है वो ऑटोनॉमस है, इट हैज अ एग्जिस्टेंस ऑफ इट्स ओन, है ना, एंड इट डिराइव्स द मीनिंग फ्रॉम इटसेल्फ। एलन टेट ने भी यही कॉन्सेप्ट रिपीट किया था अपने टेक्स्ट में, ठीक है। द स्कूल ऑफ ठीक है, उसके बाद में हमारा स्ट्रक्चरलिज्म का स्कूल, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का स्कूल, डीकॉन्स्ट्रक्शन, न्यू हिस्टोरिसिज्म, रिसेप्शन स्टडीज, ये सब इसी कोर पे आगे डेवलप होंगे, ये सब इसी थ्योरी को आगे लेके जाएंगे। इन सब का बेस यही है कि कोई भी टेक्स्ट जो है वो अपने आप के लिए स्टैंड हो सकता है, उसको किसी ऑथर की, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, उसके मॉरल बायस की, उसकी जात की, उसके रेस की, उसके जेंडर की कोई भी जरूरत नहीं है। द टेक्स्ट इज सफिशिएंट फॉर इटसेल्फ। इसी कोर कॉन्सेप्ट को वो आगे बढ़ाएंगे, प्रेजेंटिंग फॉरवर्ड देयर न्यू कॉन्सेप्ट्स, ओके। The beginning of new criticism is with John Crow Ransom, who taught in the Kenyon College, whose students were Ellen Tate, Kenneth Brooks and Robert Penn Warren, ठीक है। तो ये हमारे जो हमारे जॉन क्रो रैंसम हैं, जिन्होंने 1941 में एक ऐसे लिखा था जिसका नाम न्यू क्रिटिसिज्म था, जिसके थ्रू इस स्कूल का नाम आया था। वो कीनियन यूनिवर्सिटी या कीनियन कॉलेज के प्रोफेसर थे और उनके स्टूडेंट्स थे एलन टेट, है ना, जिसने मिस एमिली एंड बायोग्राफर्स लिखा है, उसमें भी उसी ने यही कॉन्सेप्ट प्रेजेंट फॉरवर्ड किया है। क्लिनेथ ब्रूक, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है न्यू क्रिटिसिज्म की, और रॉबर्ट पेन वॉरेन, और ये सारे सदर्नर्स थे, ओके। एंड ऑल ऑफ देम वर आल्सो अ पार्ट ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द फ्यूजिटिव्स, राइट। ये सब एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट थे जिसको हम बोलते हैं
फ्यूजिटिव्स, राइट। और ये फ्यूजिटिव्स क्या होता है? ये फ्यूजिटिव बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो सैटरडेज को मिलती थी और इस टाइप की पोएट्री डिस्कस करती थी, ठीक है। एंड इट इज दीज पीपल हु फर्दर डेवलप द स्कूल ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म, ओके, ठीक है। नाउ Paul Lothar, the professor of Trinity College, called new criticism as a re-emergence of Southern agrarian, right? So, okay, this is not important, but still as a fact, I wanted to tell you कि पॉल लॉथर नाम का एक प्रोफेसर था ट्रिनिटी कॉलेज का, उसने बोला कि न्यू क्रिटिसिज्म ऐसा लगता है कि जो साउथ एग्रीगेरियंस थे उनका री-एमर्जेंस था, एंड एक्चुअली इट वाज दैट बिकॉज ऑल दीज पीपल्स वर अ पार्ट ऑफ द साउथ एग्रीगेरियन मूवमेंट इनिशियली, ओके। क्योंकि ये जो साउथ एग्रीगेरियन मूवमेंट था इसका लीडर भी जॉन क्रो रैंसम और रॉबर्ट पेन वॉरेन और ये सब इंडल्ज थे इस मूवमेंट में भी, तो इसीलिए इसको री एमर्जेंस कहा जाता है, ओके। ओके, अब क्लिनिथ ब्रूक एक इंडिविजुअल है जो कहता है कि न्यू क्रिटिसिज्म इज लाइक अ स्नार्क। हमने अभी पढ़ा क्लिनिथ ब्रूक, उसका टीचर रॉबर्ट पेन, ये हमारा जॉन क्रो रैंसम था, है ना। तो ये कहता है कि जो न्यू क्रिटिसिज्म है इट्स लाइक अ स्नार्क, ये एक स्नार्क की तरह है, राइट। व्हाई? बिकॉज दे हैव नो क्लियरली डिफाइंड मैनिफेस्टो, उनका कोई भी क्लियरली डिफाइंड मैनिफेस्टो नहीं है, राइट। और इसीलिए ही कभी एक फॉर्मल ग्रुप नहीं बना, okay. Then the new criticism required a very careful reading of the text. Rhyme, meter, character, plot will help you identify the theme. They also looked upon for paradox, ambiguity, irony, tension within the text. Already explained in extreme detail. एलन टेट ने उसके बाद में एक पॉइंट कहा है, specific moral problems are specific to literature, but the purpose of literature is not to point a moral, right? एलन टेट ने कहा है कि जो वो बेसिकली एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ अ टेक्स्ट पे फोकस कर रहे हैं, और ये सब आइडिया हमारे वॉल्टर पीटर ने भी कहा है कि द टेक्स्ट इज एन एंड इन इटसेल्फ। उसी पॉइंट को ये रीएम्फसाइज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हर लिटरेचर कोई मॉरल प्रॉब्लम की तरफ हमें दिखाता है, बट हमारा पर्पस उस मॉरल प्रॉब्लम को दुनिया में फैलाना नहीं है। हमारा पर्पस ऑफ लिटरेचर इज नॉट टू प्रोपोगेट द मॉरल, राइट। A literature is an aesthetic object and it should be enjoyed as a text in itself. ये एलन टेट कह रहा है. Remember this is actually important, right? उसके बाद में क्लिनिथ ब्रूक्स एक बात कहता है कि लिटरेचर इज नॉट सैरोगेट ऑफ रिलीजन, राइट। रिलीजन का काम होता है मॉरल्स को स्प्रेड करना, और लिटरेचर जो है इट इज नॉट सैरोगेट ऑफ रिलीजन, वो रिलीजन का सैरोगेट नहीं है, राइट। तो वी हैव टू फोकस ऑन द टेक्निकल एलिमेंट्स, टेक्सुअल पैटर्न्स एंड द इनकॉन्ग्रुइटीज विद प्रिसिजन, ओके। रिमेंबर दिस, वो कहता है लिटरेचर इज नॉट द सैरोगेट ऑफ रिलीजन। अगर ये क्वेश्चन आता है हु आस्क्ड दिस, सो यू हैव टू रिमेंबर इट इज said by Clement Brooks, okay? उसके बाद में क्लिनेथ ब्रूक्स ये एग्जाम्पल देते हुए हमें कहता है कि जैसे डॉन और मार्वल की पोएट्री जब हम पढ़ते हैं, राइट, तो वी डोंट डिपेंड ऑन द आउटसाइड नॉलेज। जो टेक्स्ट है वो अपने आप में बहुत रिच है, राइट, बहुत हार्मोनियस है, राइट, एंड इट इज अ वेरी वेरी एस्थेटिक टेक्स्ट, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर विद न्यू क्रिटिसिज्म, है ना। न्यू क्रिटिसिज्म का कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा। न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो यू शुड बी वेरी क्लियर विद। अगर हम बोलते हैं, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं न्यू क्रिटिसिज्म, तो उसके कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला 1941 एसे। अब ये याद करो कि ये लिखा किसने था, जॉन क्रो रैंसम ने लिखा था, ठीक है। उसके बाद में इसके कुछ प्यूपल्स हैं, राइट, जैसे क्लिनेथ ब्रूक्स, एलन टेट और रॉबर्ट पेन वॉरेन, ठीक है, जो इस स्कूल को आगे बढ़ाएंगे, ओके। फिर अब जो न्यू क्रिटिसिज्म स्कूल है उसके कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे ये कह रहे हैं कि कोई भी टेक्स्ट एक ऑटोटेलिक टेक्स्ट होता है, मतलब इट कैन स्टैंड फॉर इटसेल्फ, इट इज ऑटोनॉमस इन नेचर, राइट। देन वी फोकस ऑन द क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट, है ना। हम कह रहे हैं कि कोई भी टेक्स्ट है उसकी क्लोज रीडिंग करो, मतलब उसकी फॉर्मल प्रॉपर्टीज पे फोकस करो, राइट। उसके बाद में हम कह रहे हैं कि कोई भी लिटरेचर जो होता है इट्स अ एस्थेटिक ऑब्जेक्ट, राइट।
text is enough for itself. ठीक है, उसकी एक ऑटोनॉमस एग्जिस्टेंस होती है. ओके, और कोई भी बायोग्राफर या उससे रिलेटेड कोई भी आउटसाइड इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है. इज इट क्लियर? I hope you are clear with the concept of new criticism now. So let's wrap up here, revise the notes, and from here on we are going to cover one by one the the critics that are associated with this school. Okay, so goodbye.